Madam, you are okay. But yesterday night, I am on cabinet, service commission. Yesterday night only I came to know that this matter is listed, madam. Even I didn't get time to seek instructions from the service commission. If your lordship may Just one. Madam, did they file a complaint affidavit before the High Court? Yes. What about that meeting with the coaching class? They didn't say anything about that. So we need to look into that. The allegation is this, And the court that these coaching classes, the managers or administrators, whoever might be, perhaps they are in league with the officials of the state government as well as the commission, I'll explain. and question papers which have been set. We have made the judgment. There are 2 coaching centers, Utkarsh and other one, and 24 questions from one coaching center is common. Right? So High Court Division Bench notices these things. Yes. Even then the High Court, maybe for other considerations like, it's a huge thing. 4.8 lakh applications. That was The entire thing has to be redone. Means God knows when it will be concluded. But these are very serious allegations. Why should coaching classes management, why should they be involved in the process of selection? And that is why we are asking whether he filed an affidavit and whether he denied this, that there was no such, because the High Court records there was. They admitted. But I'll explain all these things. I'm only. It is very serious. You cannot go on with the selection process like this. You can understand that people leak. The High Court has recorded that it was leaked only in one center, which had the highest number of candidates, and it was leaked at a point of time when all the examinees were taking the examination. Therefore, nobody had the benefit of the question paper leak. That we can understand. But because of the huge number of the candidates, but whatever I could gather, because We'll take it up next week. On Monday, नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, ये स्वराज की लड़ाई जो है ना, जारी रहेगी। हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह की तरह आपने लड़ाई लड़ी। सभी बातों को, सभी पक्षों को आपने सड़क से लेकर सदन तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपने रखा। पक्ष में आपका फैसला, मतलब आप जो फैसला की उम्मीद कर रहे थे, वो फैसला आपके अनुकूल या आपके अनुरूप नहीं आया, इसलिए आप निराश होंगे। लेकिन मैंने दर्शकों को जज साहब का, माय लॉर्ड का, वो पहले दिन का हियरिंग के पहले दिन का जो उनका जो उद्गार था, जैसे उन्होंने अपनी बात को रखा, वो मैंने पहले ही सुना दिया है। और आज वो बातें उनके लिए कोई मायने रखता ही नहीं था। हम लोगों को भी वो मायने नहीं रखता। हम लोगों ने कभी उसको नोटिस भी नहीं लिया उस सवाल को। जज साहब जिसको पहले दिन इतनी ज़्यादा उस बात को लेकर एग्रेसिव हो गए थे, मुझे लगा कि अच्छा, कुछ अलग तरीके से शायद जज साहब ने इन चीज़ों को देखा है कि भाई इस तरीके का प्रश्न पत्र पूछने का मतलब क्या है। हम लोग भी ये मानते हैं कि भाई ये सवाल, इस तरीके से सवाल पूछ के आप मतलब स्तरीय परीक्षा नहीं ले रहे हैं। जब सीधा सवाल आप कर दिए तो हम लोगों को याद है, पता नहीं आजकल के बच्चों की क्या स्थिति है। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ते थे ना, कुछ नई बातें समझ में आती थी, कुछ नया फैक्ट सामने आता था। जितना बार पढ़े, मतलब एनसीईआरटी अपने आप में जो है ना, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, यही 2 का एनसीईआरटी का बुक हम लोगों ने पढ़ा था। अपने आप में बाइबल, गीता, सब कुछ, मतलब जितने बार पढ़ते थे उतनी बार नई बातें। और मेरा तो आदत ये था कि एक बार पढ़ लिए, उसको रख दिए, क्योंकि हाईलाइट करते थे, फिर दूसरी बार लाते थे किताब खरीद के। एनसीईआरटी की किताब तो महंगी रहती नहीं थी, मिल जाता था। हालांकि मिलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन कहाँ, जेएनयू के पास जो खिजर सराय, हाँ याद है हम लोग,
वहाँ नहीं मिले तो इधर अगर बत्रा के सामने नहीं मिला दिल्ली में मुखर्जी नगर में, तो खिजर सराय से हम लोग ले ही आते थे। हमें मतलब मेरा वो एकदम रिंग रोड की बस पर चढ़े यूनिवर्सिटी के सामने, सीधे पहुँच गए JNU मुंद्रिका, और वहाँ मिला अपना, फिर लेकर चले आए। फिर दोबारा पढ़ते थे, उसमें नई बातें जो जो समझ में आए उसको हाईलाइट करते थे। फिर पहली किताब और आज जो किताब जो लाए उस दोनों के सामने रखते थे, और तब देखते थे कि अरे ये कैसे छूट गया। और ये सिलसिला अनंत 7-8 बार, जब जितनी बार हम नई किताबें लेकर पढ़े, कुछ न कुछ नए फैक्ट, नई तरीके की समझदारी डेवलप। ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि सवाल सीधे नहीं, सवाल में कुछ चीज़ें हों जो समझ में आने के लिए आपको उस तरीके की किताबों का अध्ययन इस तरीके से हो। इसलिए हमें लगा कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हमें लगा कि कमीशन वगैरह को करीब से देखे होंगे, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। हमें लगा था कि हो सकता है कि इनके परिवार के बाल बच्चे लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हों और खुद कभी कभी पढ़ाने बैठ जाते होंगे, तो उन चीज़ों को इनकी समझ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कमीशन में पूछा जाए, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब थोड़े है कि हड़प्पा संस्कृति में जासूस सब रेयर उस दौर का सवाल रहता था, और वो भी सवाल ऐसा पूछता था ना कि किस मतलब कहे ना कि एक से एक गाइड हम लोग पढ़ जाते थे, तभी उसी हड़प्पा पहले चैप्टर से ऐसा सवाल पूछ देता था UPSC, तो हम लोग फंस जाते थे। तो ये वो दौर है ना, वो दौर उस दौर को समझने की चीज़ है। तो हमें लगा कि शायद जज साहब उस लेवल के तक गए हुए हैं, उन चीज़ों को समझें, इसलिए ये बात। क्योंकि मैं अगर जज रहता ना, तब तो मैं तो पसीना छुड़ा देता, भाई। या फिर कोई जुडिशियरी सेवा वाले लोग जो CLC से पढ़े हुए होंगे, ये भी हो सकता है जैसे आप उनके पढ़ाई पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर UPSC दिए रहते तो उनको ये बात समझ में आती कि किस तरीके का UPSC और BPSC का सवाल पूछने का तरीका होता है। खैर, अब तो वो बातें नहीं रहा, इस जजमेंट को स्वीकार करिए और ये मान कर चलिए कि आपने बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। BPSC को इस रिजल्ट को लेने में, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में उनके पक्ष में लाने के लिए जो मशक्क़त करनी पड़ी है, वो मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि किस स्तर पर BPSC को कहाँ कैसे उनको इन बातों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। वैसे इस मुद्दे पर जो है ना, कोई सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कुछ कहने वाला नहीं है। भाई वक्फ बोर्ड पर कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो भाई अभी तो पूरा देश भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के सेंटीमेंट में जी रहा है। इस तरीके के छात्र हित से जुड़े हुए मुद्दों पर कोर्ट अगर इस तरीके का जजमेंट दे और कोई सांसद सवाल करे, ये भी संभव ही नहीं है, क्योंकि छात्र एजेंडा ही नहीं है, शिक्षा एजेंडा ही नहीं है इस देश में। पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो परीक्षा सही हो गलत हो उससे क्या मतलब है। कोई सांसद आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ बोलेंगे? मेरे जैसा पत्रकार दुस्साहस कर रहे हैं, चाहे तो हम लोगों को जेल तिहाड़ भेज देंगे, वो भी वैसे हम उनका कंटेम्प्ट मतलब उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं। कोई सांसद आज कह रहा है कि इस तरीके का जजमेंट देकर कोचिंग माफिया के साथ खड़ा है सुप्रीम कोर्ट। जिस कोचिंग माफिया के बारे में उन्होंने चर्चा की और आज कहती ऐसा हो क्यों नहीं सकता। जिस कोचिंग माफिया को सेंटर दिया गया, मतलब बताइए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कोचिंग माफिया को जहां BPSC का सेंटर निर्धारित है, वहां एक सप्ताह पहले उनको परीक्षा लेने की अनुमति दी जाती है, मॉक परीक्षा लेता है, हम लोग खबर चलाते हैं, कोई मतलब नहीं। भाई तो मतलब क्या है? आज एक बात समझ लीजिए जज साहब लोग, आज एक निशिकांत दुबे सवाल खड़े किए। हम निशिकांत दुबे के सवाल खड़े करने को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन एक सांसद सवाल कर रहा है, एक राज्यसभा के उप सभापति सवाल कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति सवाल कर रहा है। घेरे में आप खुद हैं,
आम लोगों को क्या है, आम लोग तो आम लोग हैं। दो इंस्टीट्यूशन के बीच की लड़ाई में ये आम लोग मुख्य दर्शक है। आम लोग इतना ही समझ रहा है कि दोनों में से कोई मेरा अपना नहीं है, दोनों अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है, दोनों के अपने अहंग की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि और ये लड़ाई तेज हो, क्योंकि आईना तो दिखाया जाएगा। अब हर किसी को आईना दिखाया जाएगा कि आप हैं क्या। आईना दिखाई दे जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को आईना दिखाया जा रहा है। आईना तो देखना पड़ेगा भाई, चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा कि भाई अब बहुत सारी चीज़ें आप बाएं दाएं करके नहीं चल सकते हैं। सवाल उठना अगर कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट होगा, चलिए ये भी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन सवाल तो उठेगा कि सवाल है कि कोर्ट किसके साथ खड़ी है। आप डीएम का इतना बड़ा रिपोर्ट है कि गांधी परीक्षा सेंटर पे जानबूझ के क्वेश्चन पेपर कम भेजा गया, जिस कारण से अराजकता हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये नहीं पूछ सकता है कि भाई इन पर क्या कार्रवाई की। एक स्टूडेंट की एक गलती अगर हो जाए तो उसको कितनी बड़ी सजा दी जाती है सबके सामने में, लेकिन बीपीएससी गलती पर गलती किए गया, इस तरीके से गलती करते गया, कुछ भी नहीं। आप काम करते हैं ना, आपको माफ़ीनामा है। चलिए समय बलवान है, यही है, यही इसी जगह पर स्वर्ग नरक कर्म कुकर्म सबकी सजा यही मिलता है। और ये मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं तो कोई देख रहा है, और कोई देख ही नहीं रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप समझ लीजिए हर किसी का सवाल जवाब यही होगा। छात्र आप हारे नहीं हैं, आपको हराया गया है। अब इस हार में थर्ड एम्पायर की क्या भूमिका है कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हराने में सारे तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ है। ये समझ जाइए, सारे तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ है। चक्रव्यूह में जिस तरीके से अभिमन्यु को वध किया गया था, ठीक उसी तरीके से गर्दनी विभाग आंदोलन को आज वध किया गया है। लेकिन इतिहास अभिमन्यु को लेकर आज भी सकारात्मक है ना, गर्दनी विभाग आंदोलन को लेकर भी इतिहास सकारात्मक रहेगा। जय हिंद।